भुट्टो का वारिस तो वही है ना। यही नहीं हो तुम बोले कि ये करोगे वो جی करोगे ظفر صاحب پلیز میوٹ لگا لے اگر بات نہیں کرنی ना تو मुझे ہاں جی تو اچھا یہ اچھا زرداری جو ہے ملحد ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق صرف اور صرف پاکستان کا پرائم منسٹر اور صدر مسلمان ہی ہو صرف سکتا ہے. صرف اور صرف یہ دو ہی حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ جناب ہم آخری نبی پہ ایمان رکھتے ہیں اور باقیوں پہ لعنت ڈالتے ہیں. ہاں اس کے بعد کسی بھی منسٹر ہو، ایم پیز ہو، ایم این اے ہو، یہ وہ سارے، یہ ان میں کوئی ایسی شرط نہیں، یہ آئین کے پاکستان کے آئین میں نہیں ہے. نہیں، تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کیا کے آئین ایسا نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، آپ نے شاید آئین پڑھا نہیں، بہت بڑی کتاب نہیں ہے کہ 200-250 صفحے کی ہے، بس آپ پڑھ لیں، میں نے تو اس کو کافی دفعہ پڑھا ہے. وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا صدر اور پاکستان کا وزیر اعظم صرف اور صرف ایک مسلمان ہوگا، لیکن باقی عہدوں پر دوسرے اقلیتوں کے لوگ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختم نبوت کا بھی عہد لے، کیونکہ ختم نبوت ایک کانسیپٹ نہیں ہے. ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. ختم نبوت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، صحیح. کیونکہ شریعت تو ہمیشہ تمام انبیاء کو یہی ملی ہے نا. اسلام کی خوبی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. اس کا نام اسلام ہے. تو یہاں پر تو دیکھیں قادیانیوں کی سروائیول پاکستان ہے، پاکستان قادیانیوں کی شارگ ہے. قادیانی صرف پاکستان کے بلبوتے پر پل بڑھ اور پھل پھول رہا ہے. انڈیا کی حکومت نے قادیانیوں کی بیج کشی کر دی ہے. آپ قادیان جا کے دیکھیں، سوائے چند گھروں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. قادیان میں ان کے مرزواڑوں کو گرا دیا ہوا ہے سکھوں نے، ان کے کالج گرا کر وہاں پر سکھوں نے خالصہ کالج بنایا ہوا ہے. ہندوستان میں ان کی ٹوٹل تعداد 29,000 سے بھی کم ہے. یہ ان کی حالت ہے. انڈیا کو پتہ ہے یہ وہ سانپ ہے جو کاٹے گا. جو غداری کر کے گرداسپور انڈیا کو انہوں نے دیا، اس کے بدلے میں انڈیا نے اس وقت ان سے بڑا وعدے کیے تھے کہ ہم تمہیں کشمیر کا ایک حصہ دیں گے، تم ہمیں گرداسپور دے جاؤ تاکہ ہم کشمیر کو ڈسپیوٹڈ بنا دیں اور اس پر قبضہ کر لیں. اور انہوں نے ویسا ہی کیا، غداری کی پاکستان سے پہلے دن سے. اور یہ عہد کر کے آئے تھے، ہمارے پاس تو اس کے بیانات ہیں. مرد محمود زناکار کے وہ جو زانی تھا وہ کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اب یہ الزام پروپیگنڈا کرتے ہیں جناب پاکستان کے تو مفتی محمود خلاف تھا، تمام علماء خلاف. بھئی پاکستان کے نہیں خلاف تھے، قادیانیت کی گود میں بیٹھ کر بننے والی سلطنت کے خلاف تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم نے پاکستان کی ماں بہن ایک کر دی ہے، پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. پاکستان جو ایک خود کفیل ملک تھا برباد کر دیا ہے. پاکستان جو ایٹمی طاقت بن گیا تمہاری غیر موجودگی میں، جب ضیاء الحق مسلمان ہو گیا تو یہ وہ وقفہ ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. انہوں نے اس کی بھی ماں بہن، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ایک ایسا میکینزم کریٹ کیا گیا ہے جس کو کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہے. ورنہ تو کب کا ایٹمی طاقت ختم ہو گئی. کیا انہوں نے اپنی طاقت بڑھائی؟ نہیں بڑھائی. مشرف نے نہیں بڑھائی، کسی نے نہیں بڑھائی اس کے بعد، کیونکہ یہ مرزئی ہے نا. اور پاکستان میں نیوز بلیک آؤٹ، میڈیا بلیک آؤٹ. دیکھیں مشرف سے زیادہ بڑا مرزئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو خود مرزئی تھا. اس نے رشتہ داریاں کی ہوئی تھی زرداری کی طرح. جو لاہوری جماعت کا سربراہ پروفیسر حمید اصغر تھا، اس کی بیٹی سے اپنے بھائی کی شادی کی. ایک ہی بھائی تھا اس کا، دوسرا. اور اس کی اپنی بیوی مرزین، وہ خود مرزئی لاہوری جماعت کا. پاکستان میں 12-13 سال اس نے ڈنڈے سے حکومت کی.
कभी किसी अखबार ने लिखा कि यह हरामजादा मिर्जई है? कभी किसी ने कहा कि मिर्जई तुम्हारा मुल्क चला रहे हैं? नहीं। आपका न्यूज मीडिया कहता था मुसलमान है, मुसलमानों का और खाना काबा जाता था। आपको लगता है कि सऊदी हुकूमत को पता नहीं वो मिर्जई था? बिल्कुल ठीक पता है सऊदी हुकूमत को। वो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। और ये डॉक्टर साहब ब्लैक अभी, आउट, पब्लिक से ब्लैक आउट किया हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी रिसेंटली एक मेरी ही प्रोफाइल पे मैंने वीडियो लगाई है कि सऊदीया का जो अभी वो क्या नाम है उसका, किंग है, उसका क्या नाम है मैं वो भूल जो गया। वली अहद है, किंग नहीं है, वली किंग अहद। ते पागल है, उधर डिमेंशिया होया है। और वली अहद है जो उसको कहते हैं, मोहम्मद किंग बिन सलमान। सुल्तान। मोहम्मद बिन सुल्तान सलमान, उसने नेतन्याहू को फोन किया है कि हम आपके साथ हैं। तो करेगा उसकी माँ जो यहूदन है। ये सिंगर मिर्जे मसरूर की नवासी है और ये मर्ज़ियत फैला रही है आपके सामने। निदा मैं नसर के तबलीग बाद कर अब रही है इसके भाई, बारे मर्ज़ियत दी तुसी देखिया नहीं, गौर करो। मर्ज़ियत और दे शायद जलसा अहमद सालाना तेरे नाइट जम्मन वाले शिफ्ट ते लानत, शायद अहमद तेरे जम्मन वाले ते लानत ते तेरे ते भी लानत, क्योंकि लानत एक दुआ है, दफा जो तो खोती रहा बच्चा। जी डॉक्टर साहब, हाँ। ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ, ਕੁੱਤਾ, ਕਮੀਨਾ, ਬਗੈਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਗੈਰਤੋ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ। खोती दे बच्चे हो। जी डॉक्टर साहब, अच्छा जी, तो ये पिक्चर जो लगाई है ना, 29 बंदे सुन रहे हैं, ये पिक्चर है मिर्ज़े मसरूर की नवासी, ठीक है, और ये सिंगर है और इसके काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल हैं। तो इसका एक यूट्यूब चैनल था। जब लोगों को पता चला कि ये मिर्ज़े मसरूर की बेटी है तो फिर उन्होंने फोर्स करके ये चैनल भी उड़ा दिया। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करके मज़ीद भी इंकशाफात जो हैं वो आपको देंगे, क्योंकि मर्ज़ियो खलीफा जड़ा वे वो अल्लाह चूज़ करता है। ਤੇ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਉਸੇ ਹੀ खलीफे ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ है पई कि हाथा हाश में जो कंजर खाना खुला हुआ है, मुबशर लगा हुआ है, आमर लगा हुआ है, लख दी शाहिद लानत, साहब, डुब के मर जाओ, नहीं डुब नहीं के मर जाओ। इनको बता देना कौन सा इनका खुदा है, ये लाश बाल्मिक। बाल्मिक है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਛੜੀ ਤਾਰਕ फरा ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ फरा ਰਹੇ ਨੇ। फरा इसका नाम है जी। फरा फाते, फरा मिस फाते। फाते कहते हैं इसको। मैं इंशाल्लाह ताला आज रात 8 बजे ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ। इसकी एक और पोती भी है, वो भी इसी बिजनेस में है, जो नहीं है बकास की बेटी। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे बॉयफ्रेंड, ये मैंने आपको बताया है कि मिर्ज़े खानदान में शादी वादी की कोई अहमियत नहीं होती, ज़िनाकारियां आम हैं और वो बाल्मिक मजहब का हिस्सा है। ਤੇ ਸੁਬਈ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 30 सेकंड वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ना ना, वो आप बाद में बता देना। हथनी का क्या करना है, उसको तो देख के डर केड़े हाथी नाल उन्हें एक स्कैंडल की कर लिया। डॉक्टर साहब ना, इसको रहने दें। मैं ही कुर्बानी दी है, ये मैं ही कुर्बानी दी। अच्छा, तुसी कुर्बानी दी। अच्छा। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, ये हथनी के स्कैंडल क्या बहुत बड़े होंगे, थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है, फोटो भी मिल जाएंगी। ये खुसरा तो ये भी है ना, ये जो है जो मसरूरा है ये भी खुसरा है। इसको क्या टेस्ट वेस्ट कराए, हमें प्रूफ चाहिए कि ये लड़की 2 बच्चे उसी के हैं। ए ताड़ी ब्याह दी फोटो है। एक काला काली लाश दी फोटो है, ब्याह दी सुहागरात दी मिर्ज़े कादियानी दी। अल्लाह अकबर। मतलब यार मुझे कादियानियों पर बड़ी हंसी आती है
कहते हैं कि यार वो एक के बाल सीधे हैं दूसरे के गुंगरियाले हैं, हदीसें पढ़ते हैं। वो यार बाल तेलवाओ मिर्दे दे हैं? ये कादियानी कोई बुलाए ये जो कहते हैं कि गुंगरियाले और मिर्जा तो गंजा था। और इनकी किताबों में लिखा है 20 साल की उम्र से गंजा था, ये नहीं कि बड़ा होके गंजा हुआ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਫੜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇ किरमे हाकी। डॉक्टर साहब मैंने जब किरमे हाकी का रिजल्ट निकाला ना गूगल से हाँ तो मुझे ये नजर आया हाँ, ये यही है किरमे खाक की। किरमे हाकी गंडोया ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ करो। मलक बीसीएन साहब कैसे हैं सर? ठीक है। जफर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? आप काफी देर से थोड़ा बिजी होने लगा हूं। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं नहीं, मिर्जे बारे बात करें ना, हमें बड़ी जस्तजू है, तो तबलीग करो अपनी, मिर्जे के बारे में आ जाओ, शायद हम तुम्हें कुछ बता दें सबूत के साथ। शाह साहब आपके वैसे मिर्जाई सुनते बहुत हैं, मुझे आज सुबह किसी एक मिर्जाई ने कहा मैंने छुप छुप के तुझे बहुत सुना है। वे लो डॉक्टर साहब मिर्जा गंजा सा जी पग सब साइड ते पई रही जी। नहीं तो गंजा तो वो खुद उन्होंने लिखा है गंजा था। नहीं, मिर्जाइयत बड़ी मज़क्का खेज किस्म की ये है। ये जब तक लोग जो आम कादियानी हैं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं वो क्या फॉलो कर रहे हैं। उनको गोली दी हुई है कि आप असली मुसलमान आप हैं, आपने मसीह मऊद लांती को मान लिया है, उन्होंने नहीं माना। आप देखें हमें उनमें क्या फ़र्क है, हमारी नमाज भी वही, रोज़ा भी वही, ज़कात भी वही, हज भी वही, ईद भी वही। तो बस हमने तो मसीह मौत को मान लिया, बड़े खुशकिस्मत है आपने। अब जल्दी जल्दी अपनी जेब खोल कर आगे करें, उसमें क्या रखा हुआ है, ईमानदारी से बताना। डॉक्टर साहब देखें, ये अपना ईमान भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही, जहाँ पर मिर्ज़े मसरूरे के सामने एक औरत रो रही है कि जनाब जो हमारे ओहदेदारान हैं वो हमारे साथ ज्यादतियाँ करते हैं, ठीक है। और वो हंस रहा होगा, कहता बीबी तू कितों आ गई है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं वीडियो ढूंढूंगा, नहीं ठीक मुझे है, मिल नहीं रही वो मुझे। मैं वही कह रहा हूँ शाह साहब, उसने तो नदार नसर को कहा पागल हो गई है, ये तो हमारा तरीका है, हम तो बाल्मीक है। उस वीडियो में डॉक्टर साहब मिर्जा मसूरा उसको कहता है जैसे कि मैंने तुझे बताया कि आप वजीफा करो, 6 माह वजीफा करो। वो वजीफा क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जब जब कोई आला ओहदेदार आपसे ज्यादती करता है तो आप उसके लिए दुआ करें, हदायत की दुआ करें, और जब जब वो आपके साथ ज्यादती करे। डॉक्टर साहब 6 महीने बाद तो 3 महीने बाद तो बंदा एक औरत को फेडअप हो जाता है। ठीक है। नहीं हकीकत गल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ पे करना, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਚਰਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰਸੀ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ अगर फिर भी वो बाज ना आए तो फिर मुझे कंप्लेन करें। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੂ ये लाश ਦਾ चूज कीता ਦਾ खलीफा अगे की कहता है कि अगर आपने कंप्लेन करनी है तो इस तरह ना कीजिए, कोई ऐसे ओहदेदार के खिलाफ ना कीजिएगा ताकि मुझे सिफारिशें लोग करें। फिर लख दी लानत हो तुहाडे ते जे इंसाफ दे विच भी तुसां ਜਿਹੜਾ ਵੇ इंसाफ कहां, कौन सा इंसाफ, चूड़ियां दा इंसाफ। वीडियो मैं भी सुनिया शायद साहब ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ये हाल है इनका बेगैरतों का। बगैरत तो बड़े शरीफ लोग होते हैं मिर्जाइयों के मुकाबले में।
डॉक्टर साहब जो मरज़ई होता है उसका गैरत से कोई तल्लुक नहीं होता। नहीं, वो तो बगैरती से आगे की चीज है, क्योंकि मर्दई उस बगैरत को कहते हैं जो बगैरती से आगे हो गया हो। हम्म। डॉक्टर साहब मैंने एक और वीडियो देखी थी मिर्ज़ा मसरूरे की, वो जब वो छोटी छोटी बच्चियों को 15-15, 13-13, 14-14 साल की बच्चियां जो हैं उनको लाइन में खड़ा करके एक एक की डॉक्टर साहब दोनों हाथों से उनकी चीक्स पे हाथ लगा रहा है, और ये MTR TV लाइव दिखा रहा है। शायद साहब आप पैदा हुए मुसलमान घर में, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिर्जा बाल्मीक है, उसका खुदा एक इंसान है जिसका नाम जलाश, काला, कालू, आजी, उजूज, और आपको पता है एक उसके खुदा का एक नाम साइका भी है। ठीक है, ये उसके खुदा है, उसकी जन्नत जमीन पर है क्योंकि उसका खुदा है, और वहां पर उसने दीदे हक नहीं पढ़ी, बहुत गलत बात है। आपने पढ़ी है दीदे हक? नहीं मैंने नहीं पढ़ी, मैंने साहब क्यों नहीं पढ़ी? शायद साहब फिर तुझे लेक्चर देने का कोई हक नहीं है, तुसी दीदे हक पढ़ो या फिर पढ़ के मरज़ई हो जाओ ताकि सब खत्म हो झगड़ा है। यहाँ फिर दीदे हक पढ़े और फिर आके मिर्जे के खुदा की बात करें, आपको सब समझ लग जाएगी। दीदे हक पढ़ के मर्ज़इयों में बहन से, बीवी से, बेटी से, माँ से, नानी से, दादी से जना करने में कोई खराबी नहीं है। और ये जो नियोग की बातें मिर्जा लिख गया है, उसने 10 नियोगी तो नुसरत जहां के लिए रखे थे। ਉਹਨੇ ਉਸ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਸਦਰ ਕੀ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੀਫ ਨਿਯੋਗੀ ਤੂੰ ਹੈ, बाकी को उसने कह रखा था इजाजत लेके। तो मर्ज़इयो सुन के ना, ये बड़ी गलत बात है। आप जाएं, ब्रॉड बंद करें, आप दीदे हक पढ़े और फिर वापस आए। हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, तुसी अफसोस कर रहे हो मर्ज़इयां ते। अफसोस तो उस पर होता है कि जिसका मतलब अकीदा कुछ और हो, कुछ और करता हो। मर्ज़इयों का अकीदा कुछ और नहीं है, वो दीदे हक वाला ही है। तो आप उसको गौर से एक दफा तो पढ़ना बनता है ना, तो कितनी बुरी गल है। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब मैं मेरे को किताब डाउनलोड ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, लैपटॉप पे बैठ के पढ़ सा। नहीं, वो जो आप पढ़ते हैं ना आर्य धर्म, यार वो कुछ भी नहीं है। आप पढ़े दीदे हक, यार कम से कम मर्ज़इयां नूं किताब ते सुनाओ ना, उनको पता तो लगे कि मिर्जा किस खानदान में पैदा हुआ। चूड़ा था, चूड़ा, और ये आज भी चूड़े हैं, कल भी चूड़े थे। और एक चूड़ा मुसलमान बन के इनको इतना धोखा दे रहा है। मैं कहता हूं जिस कादियानी को ये इदराक हो जाता है ना कि मिर्जा असल कौन है, मैं तो आजकल कादियानी से कहता हूँ यार मुझे कुछ मत कहो, तुम दीदे हक पढ़ लो। मिर्जे के फर्स्ट कजन जो चोरी का यार, जना का यार, डाके का यार, शराब का यार, फीम का यार, चर्च का यार, गंडे का यार, हर बुराई में उसका यार गार इमाम दीन। तुम जाके उसने मिर्जे के बारे में 2 काफिरों, वो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ 2 काफिरों की कहानी। हाँ, वहां तो उसने मिर्जे के बारे में नहीं, मिर्जे के बारे में उसने लिखा है, आपको पता क्या लिखा है 2 काफिरों की कहानी में? कहता है मिर्जा इन्ना खुसरा सी, अज भी इन्ना खुसरा है कि इन्हू नंगी कुड़ी नाल खड़ा कर दो, है कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये 2 काफिरों की कहानी में लिखा है उसने। मैं सुनिया होली भाई, और वो डॉक्टर साहब अपना हकीम मोदी ने भी तो लिखा है ना सर, रूहानी खजाइन जेल 13 सफा नंबर 203 पे कि मेरा वालिद साहब तो मैं नामर्द था। क्या लिखा यार एक सेकंड, मैं किताब कढ़न दियो, मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, इनके सारे हवाले इन्हां दे पेज जे डॉक्टर साहब। आपने वो ਮੁੱਦਾ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। पेज नंबर 203 ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, मैं डीपी ਤੇ लाया है किते ना। क्या नहीं, इमाम दीन ने 2 काफिरों की कहानी में लिखा है कि जब ये मेरे साथ था तो हमने पेंशन की चोरी का मंसूबा बनाया था। हमने सोचा था कि जाके इबादत करें दीद,
लाहौर की हीरा मंडी में, और दो काफिरों की कहानी सिर्फ मिर्जे और मौलवी जो मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। कहता है कि मिर्जे को हमारे मजहब से हटाने वाला मोहम्मद हुसैन बटालवी है। कहता वो तो पहले ही काफिर था, उसने मिर्जे को भी काफिर कर दिया। दो काफिरों की कहानी तो मैं कहता हूँ एक नंगी किताब है जो मिर्जे के बारे में इमाम दीन ने लिखी है। डॉक्टर साहब एक इनकी किताब है इसाबे अहमद, है मेरे पास। जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 31 ਤੇ 32। एक मिनट मैं ਕੱਢ ਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜ਼ਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। कादियानी जमात के कादियान के सदर मलक इस्लाहुद्दीन ने 13 जिल्दों पर एक मुश्तमिल किताब इसाबे अहमद लिखी, जिसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मरीदैन का तफसीली तज़किरा मौजूद है। इस किताब की पहली जिल्द 1951 नहीं में आ गई थी मेरे को सारियां जिल्दा मौजूद ने। जिल्द नंबर 10 जिल्द नंबर पर डॉक्टर साहब 1 सेकेंड, मेरे पास सारी जिल्दें हैं। बोल रहे जिल्द नंबर। अच्छा जी डॉक्टर साहब इसाबे 12 अहमद जिल्दें हैं इसकी। जिल्द नंबर 13। नहीं 12 तो टोटल जिल्दें हैं यार, क्या कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब 13वीं जिल्द में है ये अच्छा इसाबे। मेरे पास ये बड़े बेईमान ने मैंने उन्होंने 12 जिल्दियां दी है। मेरे पास इसके हवाले मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं मुझे देखें मैंने निकाली हुई है। इसाबे अहमद के मेरे पास 1 से लेकर 12 तक वॉल्यूम है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये 12वां वॉल्यूम जो है, और इसके ऊपर एक वार्निंग लिखते हैं, वो सिर्फ अहमदी अहबाब के लिए, कहते कोई और ना पढ़ ले। और इस पर वो लिखते हैं वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकु बिहिम। डॉक्टर साहब यही तो इनका दजल है। ये किताब आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी। क्यों? मेरे पास पीडीएफ है यार, क्या बात कर रहे हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, 13वीं जिल्द नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि अच्छा? वो जी मैं आपको उसकी हकीकत भी बताता हूँ ना, वो क्यों नहीं मिलेगी। हाँ जी बताएं। क्योंकि वो किताब वो जो हमारे मैनचेस्टर वाले मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती ABR साहब, ठीक है, अच्छा उन्होंने, उनके पास वो किताब मौजूद है, और मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से खुद देखी हुई है। उसके 2 पेजेस जो हैं वो उन्होंने मुझे भेजे थे, जिसमें अब मैं इसका आपको हवाला देता हूँ कि यहाँ पर मिर्ज़ा कहता है कि यहाँ पर वो पूरी स्टोरी बता रहा है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जब शादी की और नुसरत जहान का उसके साथ रुखसती हुई, और ये वो सारा कुछ इस किताब का है। इसाबे अहमद जिल्द 13 सफ़ा नंबर 31 और 32 में ये अच्छा लिखता एक है। बात सुने, ये कौन से साल की है? 2 इसके एडिशन आए हैं। पहला एडिशन 1965 का है, दूसरा 2015 का। नहीं 1991 में। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब वो जब शादी के लिए जा रहे थे और उसने कहा था यक्का करा लो, और वो जब दिल्ली पहुंचे तो इनकी नच्छो रंडी को जो है उस दिन रात को मोटरसाइकिल आ गए। सुबह फिर वो रेलवे स्टेशन पे गया तो उसने हमीद को बताया कि देखो वो हमीद बेचारा सारी रात सोया नहीं कि रात को क्या होगा क्या नहीं होगा। हामिद सॉरी हमीद कह दिया, सॉरी हामिद नहीं को ना सही रहा, क्या करो मिर्ज़ा कहेंगे देखा ना जी हमने कहा था ये झूठ बोलते हैं। हमीद नाम का बंदा ही नहीं है कोई लिखा हुआ, दिखाएं हमें उसका नाम निकाल कर। हामिद साहब ये डॉक्टर साहब वो किताब वो ये वाला है, ये लो जी ले आए, शायद साहब ले आए ना पढ़े। अच्छा इसमें ये कहता है कि यहाँ से पढ़ते हैं, दिल्ली में हजरत अमीर नासिर नवाब के यहाँ पहुंचे तो बैठक में मुझे ठहराया गया। चंद रोज ही नहीं ये तो मेरे पास भी है, मैं जिल्द निकाल लेता हूँ। हाँ जी तो वो जिल्द 13 है ना डॉक्टर साहब, आपके पास डेफिनेटली होगी। नहीं है चंद रोज कबल ही बीवी साहबा लांती नुसरत जहान अयाम से पाक हुई थी। घर पर ही रुखसाना हुआ
رخصانے کی رات میں نہایت بے قرار تھا کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، چنانچہ شدت اعصاب کی وجہ سے میری نیند کا رفو ہو گئی اور میں رات بھر حضرت کے لیے دعائے تفسیح سے دعا میں مصروف رہا۔ صبح کی اذان کے ہوئی تو سور میرے پاس تشریف لائے اور ہم نے نماز فجر ادا کی، جس کے بعد فرمایا آؤ لال قلعے کی طرف سیر کر آئیں۔ چنانچہ راستے میں خود ہی فرمایا کہ کالا کالو کی ذات کتنی پردہ پوش ہے اور با وفا ہے کہ رات بیوی صاحب کو پھر ایام شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ پورا آپ کا پورا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس موجود ہے یہ ریفرنس۔ جی تو یہی میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک بغیرت سا شخص نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کوئی شریف انسان کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو شاید صاحب تسی پہلا دیدے حق پڑھو، تاڑا جدوں شرافت دا بخار مرزیاں بارے اتر جائے نا پھر آ جانا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، میں نعوذ باللہ میں شرافت میں کہنا مرزئی ایک نمبر دے کھوتی دے بچے نے۔ نہیں آپ کو ایک وہم ہے کہ مرزیت میں شرافت ہے۔ مرزیت بغیرتی کا نام ہے اور بغیرتی کی اوپر لیمٹ سے آگے کا نام مرزیت ہے۔ یہ عام مرزئی جو ہے اس کی تو یہ لاشیں گراتے ہیں، اس کے پیسہ اینٹتے ہیں، ٹھگتے ہیں، اس کو گولیاں دیتے ہیں، اس کو پڑھنے نہیں دیتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ یہ عام مرزئی کے بارے میں ان کا رویہ ہے۔ لیکن اگر آپ شرافت ڈھونڈتے ہیں نا مرزیت میں، تو شرافت ان کے عقیدے میں ہی شامل نہیں ہے۔ بے شک، ہاں بے شک۔ وہ تو میں مرزیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی سکی بہن کو زنا کرتے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں فارغ ہوئے تھے آ جائیں کر۔ یہ ہے ان کی حالت مرزیوں کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب حقیقت بات ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جب میں پاکستان میں تھا نا، میرا دوست تھا، ان کی کزنیں تھیں، has been some audience live themes that some found restriction۔ یار یہ مجھے ریسٹرکشن کیوں دے رہے ہیں؟ میں جوس پی رہا تھا کھوتی کے بچوں۔ اینی وے، اچھا نہیں تو کیا وہ اگر لائف میں جوس بھی پیے تو جوس بھی پیئے تو رپورٹ ماری ہے بھائی انہوں نے، آڈینس میں سے نا کسی نے رپورٹ ماری ہے، ایڈورٹائزمنٹ وچ آ جاندی ہے۔ ہاں اینی وے ڈزنٹ میٹر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں دیکھے میری ایک عادت ہے کہ جب کسی کو دوست کہا، اس کی بہن کو اپنی سگی بہن کا درجہ دیا۔ ان بے شرموں کے گھر جاتا تھا تو جان بوجھ کے یہ جناب دروازے میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے بھئی دیکھو شاہد صاحب گل سنو، دوبارہ گل سنو، تسی پڑھو دیدے حق، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب منو کتاب بھیجو، رات والی لائف اوٹھی چلا سا پڑھنی پینی ہے پڑھنی پینی ہے شاید بھائی۔ تاڑا شرافت ڈاکٹر دا صاحب شریف مردیاں دا بخار اتر جائے نا پھر آ جانا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے وہ کتاب بھیجے۔ صاحب یہ صبح نو بھی شریف سمجھتے رہے ہیں کل تک۔ نہیں مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یار ہونے تے مرزائی شریف چاہیے دینے، اے کی ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ میں نے کب کہا ہے ڈاکٹر صاحب مرزائی شریف ہے؟ مرزائی ایک میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب میں انہاں نو کہندا سا کہ دو کڑے کچے نہیں، ڈاکٹر صاحب میں شاید بھائی نو کہندا ہاں دو کڑے کچے نہیں، مرتضیٰ تے جنگ تے سی، پچھوں کسیٹی نے جمے دو بچے نہیں، یہ ماندا نہیں سی۔ صحیح ہے یہ ان کے جلسہ سالانہ میں پڑھی جائے گی۔ بھئی کسیٹی نے مرزے نے خزائن جلد 15 صفحہ 485 تریاق القلوب نامی کتاب میں لکھا ہے کہ میں توام پیدا ہوا، پہلے لڑکی اور پھر اسی حمل سے میں پیدا ہوا، اور دور دور کے گاؤں کے بزرگ لوگوں کو میرا پیدا ہونا معلوم ہے۔
ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਕਿਉਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈ